Welcome again. Today's class for the accountancy, class 12 CBSE. In few previous episodes, I have completed the four chapters from the part B syllabus. First one, financial statement of the company, statement of balance sheet, statement of profit and loss. Second chapter, financial statement analysis, that is completely theoretical aspect. 3 to 4 pages are there in the syllabus, very little bit portion is there. After the third chapter, that is tools of financial statement analysis, and the comparative statement especially was discussed in the third chapter. 4 episodes were there for the third chapter. How to prepare the comparative statement of balance sheet, how to prepare comparative statement of profit and loss, how to fill in the missing figures in case of the comparative statement of profit and loss. In the fourth chapter, we have discussed the common size statement. Common size statement is also another type of tool or technique to analyze the financial statement. There are also 3 episodes we have done. How to prepare the common size statement of balance sheet, how to prepare the common size statement of profit and loss. These things were there. So now we are passing through the syllabus, the various tools or techniques to analyze the financial statement. कैसे financial statement, that is the final account, that is the statement of profit and loss or statement of balance sheet, इसको एनालाइज करना पड़ता है और कैसे इसको एनालाइज किया जाए, और एनालाइज करने का प्रक्रिया अलग अलग है, टूल अलग अलग है. टूल इज द हथियार, इक्विपमेंट, टेक्निक, किस किस प्रोसेस में हम एनालिसिस कर सकते हैं. ऐसे ही फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर, एक तरीका और है जिसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज. Accounting ratios is a very vast chapter, but very interesting. Small sums are there, and you do, and you will get more enthu or energy or interest whenever you will be doing this chapter sums. But consciously, very interesting way में लीजिए chapter को, अच्छा लगेगा आपको. So look at the whiteboard. पार्ट बी चैप्टर 5 एपिसोड 1. इसमें इस चैप्टर में कई एपिसोड लगेगा क्योंकि बहुत सारे रेशियो हैं, अभी दिखाएंगे आपको. भास्ट चैप्टर है ये, बट यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ एपिसोड वाइज. अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर. अभी देखो अकाउंटिंग रेशियो फर्स्ट हम लोग को जानना चाहिए कि अकाउंटिंग रेशियो किसको बोलता है. रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर्स expressed in arithmetical terms is called a ratio. अब देखो जैसे कि look at here, suppose net profit, ये रेशियो करने का जरूरत क्या है. सपोज 2019 में नेट प्रॉफिट हुआ है 10,000. इससे तो पता चल रहा है कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 2018 में सपोज नेट प्रॉफिट हुआ था 5,000. अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी का कंडीशन 2018 में अच्छा था कि 19 में अच्छा था, सब क्या बोलेगा? Everyone will say that the condition of 2019 is better. क्यों? Net profit is 10,000.
but it is not sufficient to analyze the situation of the company, क्योंकि इसको एनालिसिस करने के लिए कोई ना कोई एक तरीका निकालना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि सही में 2019 का कंडीशन अच्छा था कि 2018 का कंडीशन अच्छा था। कैसे? आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जस्ट लुक इट हियर। 2018 में सेल्स हुआ था पूरा साल भर में 20,000 का सेल हुआ था, और 2019 में टोटल सेल हुआ था 60,000। ओके, सो अभी अगर हम सेल के साथ कंपेयर करें, तब देखो यहां पे एक नेट प्रॉफिट रेशियो बोल के एक रेशियो आता है। नेट प्रॉफिट रेशियो, इसका एक फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो 2018 के लिए अगर हम कैलकुलेट करें 2018 नेट प्रॉफिट हाउ मच 5,000 बाय नेट सेल्स कितना 20,000 इंटू 100 हाउ मच 25% आएगा। तो 25% नेट प्रॉफिट रेशियो 2018 में, और 2019 में अगर कैलकुलेट करें तो क्या आ रहे हैं? 2019 में नेट प्रॉफिट 10,000 बाय नेट सेल्स कितना था 60,000 इंटू 100, तो कितना आ रहे? 3 ये गया 6 से काटेंगे तो आएगा 6 1 6 4 36 4 16.67%। तो देखो 2019 में नेट प्रॉफिट रेशियो आ रहे 16.67%, यानी कि 2018 में नेट प्रॉफिट रेशियो आ रहा था 25%। मतलब सीधा कंडीशन कौन सा साल का अच्छा है? 2018 का कंडीशन अच्छा है। कब पता चला? जब हम नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया तब। सिर्फ नेट प्रॉफिट तो देख के पता चल रहा है कि 2019 का कंडीशन अच्छा है, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो जब कैलकुलेट कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि असल में कौन सा साल का सही कंडीशन है, सही अच्छा सिचुएशन है। सो इसीलिए अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करना जरूरी है कि ये एक एनालिसिस का प्रोसेस होता है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट एक है, सपोज 5,000 था और नेट सेल्स था 20,000 इंटू 100। तो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये है नेट प्रॉफिट, ये है नेट सेल्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। ये दो फिगर का, ये 5,000 और 20,000, ये दो फिगर है, दो फिगर का रिलेशनशिप जो है उसको एरिथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करने का जो प्रोसेस है उसको बोलता है रेशियो। क्लियर? अब देखो ये रेशियो को एक्सप्रेस करने का कई तरीका है रेशियो को एक्सप्रेस करने का। अगर हम सपोज ये करेंट रेशियो का एक फॉर्मूला होता है जो आएगा सामने आपके पास चैप्टर में। करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। ओके, सपोज पर्टिकुलर ईयर में कंपनी का टोटल करेंट एसेट है 20,000 और टोटल करेंट लायबिलिटीज है 5,000। सो 20,000 बाई 5,000 इसका फॉर्मूला है, करेंट रेशियो का फॉर्मूला। तो 4/1 यानी 4:1। अगर हम इस टू करके एक्सप्रेस करें रिजल्ट को, उसको बोलता है प्रोपोर्शन मेथड और प्योर रेशियो और सिंपल रेशियो। जस्ट इसका नाम है, हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियो को। ओके, नेक्स्ट एक यहां पे प्रोसेस है रेट और टाइम मेथड। मतलब अगर यही 20,000 बाई 5,000 4/1
इसको हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं, मतलब करेंट लायबिलिटीज 5000 था, करेंट एसेट 20,000, तो 5000 का 4 गुना है, 4 टाइम्स है करेंट एसेट्स. सो इट इज ऑल्सो वन वे टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ द रेशियो. इस टाइम्स मेथड में अगर हम आंसर निकाले तो उस मेथड का नाम हो जाएगा टाइम्स मेथड या रेट मेथड. बोथ इज करेक्ट. अगर आपको करंट एसेट दे दिया, करंट लायबिलिटीज दे दिया, कोई निकाल के 4:1 लिखा वो भी राइट है, कोई 4 टाइम्स लिखा वो भी राइट है, और नेक्स्ट जो आ रहे वो भी राइट होगा. जस्ट मेथड अलग अलग है, माने एक्सप्रेस करने का मेथड अलग है. थर्ड आ रहे आपके सामने परसेंटेज मेथड, मतलब सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटीज, करेंट रेशियो का फॉर्मूला है ये. करेंट रेशियो का फॉर्मूला और डिटेल में आएगा आपको जब रेशियो का टाइप समझाएंगे. जस्ट अभी हम ये एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो मेथड का नाम समझा रहे हैं. अभी परसेंटेज मेथड में 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 100 के आधार पर जो होता है वही तो होता है परसेंटेज. इसलिए 20,000 by 5,000 into 100. सो हाउ मच? 4/1 into 100. सो 400%. अब मत सोचिए कि सर 100 से ज़्यादा कैसे होता है परसेंटेज. 400% मतलब 5,000 का 400% है. करेंट लायबिलिटीज का 400% है करेंट एसेट्स. यही यहाँ पे मीन कर रहा है. एक है फ्रैक्शन मेथड. यहाँ पे करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटीज सेम फॉर्मूला, 20,000 by 5,000, 4/1. ये 4/1 करके अगर हम छोड़ देंगे तो उसको फिर बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड. यहाँ पे 4/1 हो गया, इसको डायरेक्ट आप 4 भी लिख सकते हैं, 4 टाइम्स लिख सकते हैं, 4:1 लिख सकते हैं. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर परसेंटेज मेथड हो जाएगा. तो हर एक मेथड आपका एक्सप्रेशन करने का मेथड है. ऑल इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम फ्रॉम है. ये फ्रैक्शन मेथड स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 250 है और नीचे 30 है, तो 0 कट गया. 3 से 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3 8 24, 24.33 आएगा. तो ये फ्रैक्शन है, इसलिए इसको बोलता है फ्रैक्शन मेथड, नथिंग मोर. ये तो रेशियो को एक्सप्रेस करने का मेथड्स किया. अभी नाउ वी आर कमिंग टू द वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियोज. नाउ कोई एक पर्टिकुलर रेशियो में आज नहीं जाएंगे, आपसे परिचित करा रहे चैप्टर का आज. देखिए बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ratios are there. First one liquidity ratio, second one solvency ratio, third one activity ratio, fourth one profitability ratio. अब ये लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में फिर 2 रेशियो है, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो. करेंट रेशियो को फिर और एक नाम दिया जाता है वर्किंग कैपिटल रेशियो. करेंट रेशियो का ही और एक नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो. फिर देखो सेकंड नंबर टाइप्स, ये टाइप है सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो में तो ये लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या आता है? करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो और लिक्विड रेशियो में फर्क है. लिक्विडिटी मतलब ये दोनों, लिक्विड मतलब ओनली लिक्विड रेशियो का बात पूछा है. इसका भी और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो. ये पर्टिकुलरली आई विल कम लेटर ऑन विद द करेंट रेशियो. करेंट रेशियो के बारे में जब डिस्कशन करेंगे अलग से, लिक्विड रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे अलग से, तब आपको डिटेल पता चलेगा. लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्यों बनाएंगे ये रेशियो? ये दोनों रेशियो बना के कंपनी को पता चलता है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म फिनेंशियल पोजीशन कैसा है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है. पता चलता है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब 1 साल के पीरियड के लिए कंपनी का फिनेंशियल कंडीशन कैसा है. लेकिन 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए कंडीशन कैसा है ये अगर जानना है तो क्या करना है, उसके लिए सॉल्वेंसी रेशियो चाहिए. सॉल्वेंसी रेशियो बनाना पड़ेगा. और सॉल्वेंसी रेशियो में 4 टाइप का रेशियो आता है. वन इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो,
प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 4 रेशियो आता है सॉल्वेंसी रेशियो। मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, कंपनी का फिनेंशियल कंडीशन कैसा है वो पता चलता है ये सब रेशियो के माध्यम से। और लिक्विडिटी रेशियो के माध्यम से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कैसा कंडीशन है वो पता चलता है। 3 नंबर में बोल रहा है किस टाइप का, एक्टिविटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर मतलब सेल्स बोलते हैं इसको, मतलब इसके अंदर में फिर 4 आ रहे। ये किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये सब रेशियो बनाते हुए पता चलेगा कि कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, कंपनी का काम कहां तक चल रहा है, एक्टिविटी क्या है, कंपनी का सेल क्या हुआ है, कितना हुआ है, और सेल जितना हो रहा है उसके आधार पर ही परफॉर्मेंस पता चलता है। इसीलिए एक्टिविटी या परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशियो बोलते हैं इसको। तो कंपनी का एम्प्लॉइज का कंडीशन, एम्प्लॉइज का काम करने का एक्टिव कितना है वो परफॉर्मेंस पता चलता है। और आखिर में आ रहे 4 नंबर टाइप, इसके अंदर में देखो 4 है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो इसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और ये था वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दोनों डिफरेंट है। सॉरी। नेक्स्ट इज कमिंग profitability ratio. It is 4th type of ratio that we have to do. Under this 5 types of ratios are there: gross profit ratio, net profit ratio, operating ratio, operating profit ratio, return on investment. ये 5 टाइप का रेशियो बनाते हैं हम लोग, बना के पता चलता है किस लिए, why we do the profitability ratio, because through these ratios, through these 5 ratios we can come to know that how the company is earning the profit, whatever is the profitable condition of the company in a particular year, that we can analyze. So dear children, you will go through the whatever is given here in the first page of the chapter and in the second page of the chapter also, just the syllabus इस chapter के अंदर में क्या क्या है at a glance वो दिखाया गया आपको। Next, in the next episode, we will start with the liquidity ratio, current ratio. इस चैप्टर में बहुत सारे साम्स हैं, लेकिन छोटा छोटा साम्स है। प्लीज़ हर एक साम को प्रैक्टिस करो, बनाओगे तो अच्छा होगा। आज कोई साम नहीं बनाना है, जस्ट जो हम दिया इसको एक फोटोकॉपी हम फोटो उठा के भेज रहे हैं। और फॉर द हिंदी वाली का विद्यापीठ आई एम टेलिंग फोटोकॉपी भेजे हैं, और ये जो वीडियो है ये हम यूट्यूब चैनल में दे रहे हैं, वहाँ से जस्ट इसको फॉलो करो। किताब अगर है तो किताब को फॉलो करो, नहीं तो हम 2 पेज का जेरॉक्स फोटोकॉपी भेज रहे हैं, उसको फॉलो आप कीजिए। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल स्टार्ट द सम्स विद द करेंट रेशियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।